Hello everyone, welcome back to the physics class. In the previous lecture we were discussing the chapter magnetic effect of electric current, in which we have covered up to the topic magnetic field due to a straight current carrying wire. Now different shapes are there, we have considered the one, another we are going to discuss today. So topic is magnetic field due to a current carrying circular loop, सर्कुलर लूप है आपके पास, जिसमें करंट चल रहा है, उसकी वजह से हमने क्या कैलकुलेट करना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सर्कुलर लूप का, हम देखते हैं. अब वी हैव कंसिडर्ड अ सर्कुलर लूप that is connected over here, through which current is passing. Current is flowing clockwise with center or radius r है इसकी. So current is flowing clockwise in a circular loop. Current carrying wire behave as a magnet, so this will also be a magnet. ये भी एक magnet होगी. And magnet has two poles. A closed loop has a two poles. One is north and another is south. तो इसका नॉर्थ और साउथ का हमें कैसे पता चलेगा? A current carrying circular loop has two poles, that is north and south. How can we recognize which pole is north and which pole is south? Let us discuss. Okay, it can be calculated using clock face rule. What is clock face rule? If looking at this face from the front side, if current looks like that it is flowing in clockwise direction, if from the one face it is looked that current is flowing in clockwise direction, from the face where current is clockwise, that is called south pole. If current is in clockwise direction, that it will be a south pole. तो जिस पोल पे करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, that will be a south pole. So it means that front face is south pole. And where the current is anti-clockwise, so it will be a north pole. If current is in clockwise direction, that will be south pole. If the current is in anti-clockwise direction, that will be north pole. So from the front face you can look at here, current is clockwise, so this will be south pole. From back if you look at this, the current will be anti-clockwise from that face, so that will be north pole. तो एक पोल बन गया साउथ और एक पोल क्या बन गया, नॉर्थ. How can we recognize the poles of a current carrying circular coil? That is called clock face rule. Rule is if current is clockwise direction, that will be south pole, and if current is anti-clockwise direction, that will be north pole. Now we are going to discuss magnetic field due to a circular coil. सर्कुलर कॉइल का जब मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया एट एजेस, ये एजेस है इसके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही होता है. एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सर्कुलर. सर्कुलर शेप में ही है, क्योंकि एजेस की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव करता है. इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, इसमें डाउनवर्ड जा रहा है इधर से, तो वो सर्कुलर ही होता है. When we move to the center of the circular coil, जब हम इसके सेंटर में आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रेट. एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रेट. एट एजेस मैग्नेटिक फील्ड इज इन सर्कुलर फॉर्म, एंड एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो अगर सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, एजेस पे सर्कुलर होता है और सेंटर पे क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है. So this is the magnetic field of a circular coil carrying current. Now what we are doing, how can we increase or decrease the magnetic field due to a circular coil? Circular coil magnetic field वही current के directly proportional. Magnetic field current के क्या है,
डायरेक्टली करंट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और रेडियस ऑफ लूप, जो सर्कुलर लूप लिया आपने उसकी रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शन, रेडियस जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम, और रेडियस जितना कम मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट, करंट के डायरेक्टली और रेडियस के इनवर्सली। करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। दिस वाज द सेकंड शेप. Another shape is also to be discussed. Third one is magnetic field. Magnetic field due to current carrying solenoid. Due to current carrying solenoid. करंट कैरिंग सोलेनॉइड आपके पास, उसके ऊपर आपने, उसमें करंट चल रहा है मतलब एक सोलेनॉइड में, और उसकी वजह से आपने क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ सोलेनॉइड. व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है? ओके, सोलेनॉइड इज अ कॉपर वायर वाउंड, मतलब लपेटी गई है, इन दी फॉर्म ऑफ हेलिक्स. हेलिक्स होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग की शेप में. अ कॉपर वायर वाउंड इन दी फॉर्म ऑफ हेलिक्स हुज लेंथ इज वेरी लार्ज as compared to its diameter. As compared to its diameter. It means a copper wire wound in the form of helix. A copper wire है जो helix की फॉर्म में, स्प्रिंग के शेप में वाउंड है, whose length is very large as compared to its diameter. जिसकी लेंथ उसके डायमीटर से काफी ज्यादा है. This is called a solenoid. So this is a solenoid in the form of helix, स्प्रिंग के शेप में वाउंड किया गया. So this is solenoid in the form of spring. स्प्रिंग ऐसा ही होता है ना, in the form of helix whose length is very large. जो इसकी लेंथ है L और इसका जो डायमीटर D, तो लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. व्हेन वी कनेक्टेड दिस सोलेनॉइड to a battery and a switch is there. Okay, when we switch it on, current is passing through this. current यहाँ से इसमें पास करेगा और सोलेनॉइड में करंट जाएगा. ओके, एंड अगेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा. तो करंट इज पासिंग थ्रू दी सोलेनॉइड. सोलेनॉइड में करंट पास कर रहा है, इट ऑल्सो बिकम्स अ मैग्नेट, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या बन जाती है, एक मैग्नेट. इस पर अगर ये एक मैग्नेट है तो इट हैज ऑल्सो नॉर्थ एंड साउथ पोल. इसका भी नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होने चाहिए. तो इसका नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा, इसका साउथ पोल कौन सा बनेगा, वो हम देखते हैं. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? अगेन क्लॉक फेस रूल. अगर हम इधर से देखेंगे फ्रॉम दिस, हमें करंट क्या दिखाई देगा, ये क्लॉकवाइज. तो जिस फेस से करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे वो साउथ पोल, अनदर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल. आप इधर से खड़े होकर सोलेनॉइड को देखोगे अपने सामने, तो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा कॉइल में. इट मींस अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इट मींस दैट इज साउथ पोल. तो अनदर कौन सा होता है, नॉर्थ पोल. उधर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा. इट मींस जो बार मैग्नेट होती थी, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न था वैसा ही सोलेनॉइड का था. बार मैग्नेट में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ. सोलेनॉइड में भी ऐसा ही होता है. Magnetic field line starts from north and ends at south. Magnetic field line starts from north pole and ends at south pole. तो ये साउथ पोल पे जा रही है, ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे जाती हैं, आउटसाइड दी बार मैग्नेट, आउटसाइड दी सोलेनॉइड. ओके, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड. सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज यूनिफॉर्म.
यूनिफॉर्म का मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहता है, सेम. Inside the solenoid, magnetic field is same at every point, so magnetic field is uniform inside a solenoid. Magnetic field is uniform inside a solenoid. एक solenoid में magnetic field uniform रहता है inside. बाहर non uniform होता है, पोल्स पे strong होता है, बाहर जगह weak होता है, लेकिन अंदर uniform रहता है. How can we represent the uniform magnetic field? If magnetic field lines are parallel and equally spaced. If magnetic field lines are parallel and equally spaced, parallel है और equally spaced है, गैप बराबर है, parallel में जैसे नोटबुक की लाइंस होती हैं. So this is uniform magnetic field. It means this is uniform magnetic field. Magnetic line starts from ends at south, starts from north and ends at south. So this is the representation of a uniform magnetic field, and uniform magnetic field is inside the solenoid. Solenoid has a north pole as well as a साउथ पोल. तो बाहर मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है. हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगा. सेकेंड, इंक्रीज करंट. करंट अगर ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा. करंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट थर्ड आता है यूजिंग सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर. यूजिंग सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर मटेरियल. कोर का मतलब होता है कि अगर ये आपने जो सोलेनॉइड की वायर राउंड की है वो अभी उसके अंदर एयर है, लेकिन अगर आप इसको एक लोहे की रॉड लेके, मतलब सोलेनॉइड की आयरन की, सॉफ्ट आयरन की, इसके ऊपर बाउंड कर दो ऐसे. सॉफ्ट आयरन खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, खुद मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो करंट भी, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ही करना है हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर आप सॉफ्ट आयरन की रॉड को एज अ कोर यूज करते हो इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज्ड. मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज. कोर मटेरियल अगर सॉफ्ट आयरन यूज करोगे तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन current carrying conductor placed in magnetic field. Magnetic force on current carrying conductor placed in magnetic field. If you have a current carrying wire, if you have a current carrying wire and placed in magnetic field, external magnetic field, उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेट वायर का तो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने रख दिया, दैट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स. उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. और वो फोर्स कितना होगा वही हमने अब कैलकुलेट करना है. कितना लगेगा ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, दैट वी कैन कैलकुलेट. देन वी कैन कैलकुलेट. Oersted found that current carrying conductor produces a magnetic field around itself. When this current carrying conductor placed in magnetic field of a magnet, किसी बाहर दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, then magnetic fields of conductor and magnet interact. एक तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, suppose look at here, this is north pole, this is south pole, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, this is the direction of magnetic field. आपने एक करंट कैरिंग वायर ऐसे रख दी, इसमें परपेंडिकुलर रखनी है, तो करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक्सटर्नल जो आपने लगाया उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, सो देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. दिस इंटरेक्शन लीड्स टू अ फोर्स. इससे जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. किसके ऊपर, वायर के ऊपर, जो करंट कैरिंग वायर है. दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वायर भी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, बट मैग्नेट काफ़ी हैवी होती है इसलिए वो मूव नहीं कर पाती, वायर थोड़ी हल्की होती है इसलिए वो मूव कर जाती है. तो इट मीन्स फोर्स हमें किसके ऊपर फील होगा, दैट इज ऑन वायर. किसके ऊपर फील हो रहा है, दैट इज ऑन वायर. सो फॉर दिस की फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है,
Now we are doing an activity. Okay, what is that activity? Look at here. This is north pole of a magnet, this is south pole of a magnet. Okay, so this is a current carrying wire. Magnetic field is always from north to south. Magnetic field is always from north to south direction. Now this current carrying wire will experience a force. इसको एक force feel होगा. वो force किस direction में होगा? Direction can be calculated using direction of force on current carrying wire. On current carrying wire is given by Fleming's left hand rule. Rule is Fleming's left hand rule. What is Fleming's left hand rule? Okay, this is the Fleming's left hand rule. What we have to do, we have to open the thumb, forefinger and central finger of your left hand perpendicular to each other. तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर. यहाँ आप देख सकते हो मेरी फोर फिंगर और थंब एक दूसरे से परपेंडिकुलर. ओके, यहाँ आप देख सकते हो अब ये मेरी फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और ये भी थंब जो है ये भी आपस में एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है. यहाँ आप देख पाओगे ये थंब और ये इधर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे हैं. तो 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ योर लेफ्ट हैंड. Forefinger will give us the forefinger. First of all, let us take the thumb. What is thumb? Thumb will give the direction of force. Second, that is forefinger, जिसको हम first finger भी कहते हैं हमारी. Forefinger gives the direction of magnetic field, and central finger gives the direction of current. Central finger will give the direction of current. Thumb force, forefinger magnetic field और central finger current के direction बताएगा. Now in this case magnetic field is north to south, magnetic field ये direction होगी north to south. तो forefinger आपने forefinger किस direction में? magnetic field. Central finger current, करंट जहाँ चल रहा हो, करंट कहाँ चल रहा है? अपवर्ड. करंट अपवर्ड कर दिया, सेंट्रल फिंगर अपवर्ड होगी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सेंट्रल फिंगर अपवर्ड. तो थंब कहाँ है? थंब जा रहा है इनवर्ड. थंब कहाँ एक्ट कर रहा है? दैट इज इनवर्ड. इनवर्ड, बोर्ड के इनवर्ड. ऐसे है ना, ये रहा थंब मेरा पीछे की तरफ, ये थंब इनवर्ड जा रहा है. इसका मतलब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रख दी. तो थंब जो मेरा पीछे खुला हुआ है वो इनवर्ड जा रहा है. इसका मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लगेगा. अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ड. अगर इसी में करंट डाउनवर्ड जा रहा होता है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ है? नीचे, तो थंब इज आउटवर्ड. लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ, सेंट्रल फिंगर करंट डाउनवर्ड, थंब आउटवर्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फोर्स विल बी आउटवर्ड. तो इसके ऊपर फोर्स लगी आउटवर्ड, वायर आउटवर्ड आएगी ऐसे. सो दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. हाउ कैन वी लर्न? ओपन दिस. फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड. एफ फादर, एफ फोर्स, ये फोर्स बताएगा. मदर एम, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. चाइल्ड सी, ये करंट बताएगा. फादर मदर चाइल्ड. ओके, ऑल्सो यू कैन डिस्कस लर्न इट इन अनदर वे, दैट फ्रिज में चॉकलेट, फ्रिज में चॉकलेट. फ्रिज एफ, इट मीन्स फोर्स. एम मैग्नेटिक फील्ड में, एम मैग्नेटिक फील्ड, चॉकलेट सी, दैट इज करंट. तो थंब जो होता है वो फोर्स बताता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताता है, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताता है. सो दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. एक चीज में ये रूल तभी लगेगा जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो. करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए. इट इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. What is it? That is Fleming left hand rule. Okay. Now next concept, based on
the previous topic which we have covered, force on current carrying electromagnetic field, इसी के ऊपर based है. The topic is electric motor. What is the topic? That is इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर आपने बहुत से अप्लायंसेस में देखी होगी. इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमारे घरों में फ़ैन होता है, फ़ैन में इलेक्ट्रिक मोटर है, वॉशिंग मशीन है इलेक्ट्रिक मोटर है, हैंड ग्राइंडर होता है इलेक्ट्रिक मोटर है, पानी वाली मोटर भी होती है हमारे घरों में. तो मोटर हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस में मोस्टली यूज़ होती ही है. सो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है वो हम देखते हैं. इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट electrical energy into mechanical energy. A device which can convert electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी. अब जैसे फैन है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ये घूमता है, मतलब घूमता है तो चलता है, इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. So a device which can convert electrical energy into mechanical energy, that is called an electric motor. What is it? That is called electric motor. इसको electric motor कहा जाता है. What is the principle of electric motor? We should know. What is principle of electric motor? Principle of electric motor is this: when a rectangular current carrying coil, when a rectangular current carrying coil placed in magnetic field, when a current carrying coil placed in magnetic field, it experience a force which rotates the coil. When a rectangular current carrying coil, जब एक current carrying coil है rectangular placed in magnetic field, आपने उसको किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वह फोर्स उस कॉइल को क्या करवाएगा, रोटेट. अभी तक हमने एक वायर थी, वायर मूव करती थी, यहाँ एक रेक्टेंगल शेप में कॉइल होगी और वो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? कैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर बनी हुई होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी मेड ऑफ कॉपर वाउंड ऑफ ए सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर. सबसे पहले एक इसमें लैमिनेटेड कोर, ये सॉफ्ट आयरन का एक फ्रेम होता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ. इसके ऊपर कॉपर की कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स होती है. मैं एक ही टर्न बना रहा हूँ, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती है. ओके, सॉफ्ट आयरन का एक फ्रेम होता है रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर कॉयल ए बी सी डी. कॉपर कॉयल इज ए बी सी डी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉयल. व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट इज आर्मेचर कॉयल. ये आर्मेचर कॉयल होती है, कॉपर की बनी हुई है, रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर बैठोगे तो रेक्टेंगुलर ही शेप आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉयल. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स. वी हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ. वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ. सो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये कॉयल जो है वो किस में पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड में. टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट बिटवीन विच आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड. दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स ले लिए, एक नॉर्थ और एक साउथ, और उसमें जो आर्मेचर कॉइल है रोटेट करेगी. नेक्स्ट, थर्ड इज स्प्लिट रिंग और हाफ रिंग जिनको कहते हैं. यहाँ हमारे पास जैसे एक मेटल का कड़ा होता है, हमारा कड़ा पहनते हैं हम हाथ में, उसको हाफ कर दो सेंटर से तो दो रिंग्स बन जाएंगी ऐसे, इनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं. ए इज कनेक्टेड टू रिंग R1 और D इज कनेक्टेड टू रिंग R2. A is connected to ring R1, D is connected to ring R2.
थोड़ा सा ये टेढ़ा बन रहा है, ठीक करते हैं इसको। ओके, दिस इज रिंग R1, दिस इज रिंग R2 मेड अप ऑफ मेटल, मेटल की बनी हुई है, हाफ रिंग्स हैं, इनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग या क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर के इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रशेज। नेक्स्ट क्या आते हैं? ब्रशेज। दिस इज ब्रश B1, दिस इज ब्रश B2। ब्रशेज ये कार्बन के ब्रशेज होते हैं। कार्बन के ब्रशेज आपने देखे होंगे, कई सर्किट वगैरह को जोड़ने में लगते हैं, ये कार्बन के ब्रशेज कहलाते हैं। A जो था, B जो था, ये A और D जो थे वो रिंग्स के साथ कनेक्ट थे, मतलब वेल्डिंग की होती है इनकी, यहाँ पे वेल्ड होते हैं ये। जो ब्रशेज इस रिंग के साथ सिर्फ टच है, ब्रशेज रिंग के साथ क्या ओनली टच है, वो वेल्डिंग नहीं है। मतलब रिंग्स अगर घूमे, मान लो रिंग ऐसे है और ये यहाँ पे, ठीक है, तो अगर रिंग रोटेट कर गई तो ये यहीं कहीं रहेगा, ब्रश नहीं रोटेट करता साथ के साथ में। ब्रश सिर्फ टच है, और पर जो वायर है वो कनेक्ट है। कनेक्ट और टच में फर्क पता चलेगा, कनेक्ट वेल्ड की हुई है, और टच का मतलब अगर घूमेगी तो उसके साथ में नहीं घूमेगी, सिर्फ कनेक्शन पास करने के लिए, करंट पास करने के लिए उसमें से। सो ब्रश B1 एंड B2। बाहर हमने इसमें एक बैटरी लगाई है जिससे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देयर इज अ स्विच, और ये इससे कनेक्ट है, ये स्विच हो गया, दिस इज बैटरी B, ये स्विच K। नेक्स्ट देयर इज अ शाफ्ट। रिंग्स जहां पे जिस रॉड के ऊपर एक लगी होती है, ये रिंग्स जहां से कनेक्ट होती हैं, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? शाफ्ट कहा जाता है। एक सेंट्रल रॉड जिसके ऊपर ये सारी कॉइल रोटेट करती है, रिंग भी रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड shaft. So this is the construction of an electric motor. This is the construction of an electric motor. Now let us discuss how it works. ये work कैसे करती हैं? वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब इनको देखो, वर्किंग अब हम करेंगे। This is construction. Now what we are doing, that is working. K को हमने सबसे पहले क्या किया? स्विच ऑन। जैसे ही कोई हम मोटर चलाने के लिए क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। करंट बैटरी के पॉजिटिव से चलता है, करंट किस में एंटर करेगा? सबसे पहले V1 से करंट किस में गया? R1 से गया A से कहाँ गया? B से गया C से D से रिंग R2 से B2 और B2 से वापस इधर आ गया। सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल होगी। व्हाट इज दिस कॉइल नाउ? करंट कैरिंग कॉइल, बिकॉज इसमें क्या चल रहा है? अब करंट चलने लग गया यहाँ पे, ये करंट पास कर रहा है, सो दिस इज करंट कैरिंग कॉइल। ओके, अगर हम पूरे कॉइल की बात करने के बजाय एक साइड की बात करें, दैट इज AB इज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। AB एक स्ट्रेट वायर है और किस में पड़ी है? वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स, एंड फोर्स इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, सो थंब इज इनवर्ड। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इनवर्ड, मतलब ये वाली साइड अंदर जाएगी। इसकी हम बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट डाउनवर्ड है इसमें, CD की बात कर रहे हैं, तो थंब आउटवर्ड, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? दैट इज आउटवर्ड। ये इन है, ये आउटवर्ड। एक हो गया इन और एक क्या हुआ? आउटवर्ड। जैसे हम ये बात कर लेते हैं, ये हमारे पास बुक है, ये वाली साइड ऐसे ABCD, ये वाली साइड अंदर जाएगी और ये वाली साइड बाहर आएगी। ये अंदर क्योंकि इनवर्ड फोर्स लग रहा है लेफ्ट पे, और ये आउटवर्ड। ओके, तो इट मीन्स ये क्या करेगी? अब रोटेट करेगी। इसका मतलब ये रोटेट करेगी तो रिंग्स भी इसके साथ क्या करेंगी? रोटेट करेंगी। जो रिंग्स ऐसे थी, इधर R1 थी, इधर R2 थी, रिंग्स भी उसके साथ साथ क्या कर जाएंगी? रोटेट। ओके, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा? दिस इज बिफोर हाफ रोटेशन। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद अभी करंट क्या चल रहा है? ABCD, तो ये कॉइल क्या करेगी? रोटेट। कॉइल रोटेट करेगी तो ये शाफ्ट भी क्या करेगा? रोटेट। शाफ्ट रोटेट करेगी तो इसका मतलब जो मोटर है रोटेट, पंखा है जैसे, शाफ्ट रोटेट करने के इसी के ऊपर फैन लगे होता है, ऐसे शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो वो फैन रिंग्स भी क्या करेंगे? रोटेट। इसका मतलब मोटर वर्क करने लगी। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा? अब हम ये देखते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी? देखो, ये बन जाएगी वो कॉइल फ्रेम है, DCBA, A की जगह A की जगह D आ गया, और D की जगह A आ गया, B की जगह C की जगह B। यहाँ रिंग चेंज हो जाएंगी, दैट इज R2, और इधर क्या बचेगा? दैट इज R1।
R2 एक साइड में आ गया, R1 एक साइड में आ गया। ब्रशेस मूव नहीं करेंगे क्योंकि ब्रशेस सिर्फ टच में थे। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। तो यहाँ बैटरी है, ये स्विच ऑन ही है हमारा ये। अब करंट इसमें ऐसे जाएगा, ये मैग्नेट के पोल्स एज इट इज रहेंगे। करंट अब कहाँ जा रहा है? D से C, C से B, B से A इधर आएगा ये। जैसे ही करंट हमने इसमें स्टार्ट किया, ब्रश B1 से R2 गया करंट। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर करंट अपवर्ड, तो ये इनवर्ड जाएगा। पहले CD कहाँ जा रहा था? आउटवर्ड। अब CD कहाँ जाएगा? दैट इज इनवर्ड। मतलब हाफ रोटेशन के बाद अगर ये ऐसे आया तो इसके बाद फिर आगे जाएगा ऐसे, मतलब लगातार क्या करता रहेगा? रोटेट। जैसे ये देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ये इनवर्ड गया, ये हाफ रोटेशन होगी, फ्रंट पार्ट आपके सामने आ गया, तो इसका मतलब ये आगे फिर से ये वाला पार्ट पर आउटवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे आके ये इनवर्ड जाएगा, ये इनवर्ड गया, तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या करने लग जाएगी? कॉइल रोटेट करने लग जाएगी ऐसे। और कंटिन्यू अगर ये रोटेट करेगी तो इसका जो शाफ्ट है ये कहाँ जाएगा? इनवर्ड। और ये वाला कहाँ जाएगा? आउटवर्ड। तो कंटिन्यू ये क्या करने लग जाएगी? रोटेट। इसके ऊपर शाफ्ट है, ये भी लगातार क्या करेगा? रोटेट। शाफ्ट रोटेट करेगा तो इसके ऊपर जो फैन लगा हुआ है वो भी लगातार क्या करेगा? रोटेट। तो मोटर वर्क करने लगी। ओके, तो इट मीन्स आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन पहले क्या थी? ABCD, इसमें क्या है? DCBA। आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड AC मोटर। क्या बोलते हैं इसको? AC मोटर इसको बोला जाता है। ठीक है, AC मोटर के बारे में हमने, वैसे DC मोटर है, अगर AC मोटर बनानी हो आपने तो यहाँ स्लिप रिंग्स लगती हैं सेपरेट रिंग्स की जगह। तो आपने सिर्फ आपने इलेक्ट्रिक मोटर करनी है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक motor. I hope you all understood the concept of electric motor. Next we are going to discuss the topic what is electromagnetic induction. Topic is electromagnetic induction. अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है। नाउ उससे उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हाउ कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिज्म, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट यू कैन राइट इट एज EMI। इन शॉर्ट यू कैन राइट इट एज EMI। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? Production of electricity by changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाउ कैन वी डू दिस? लेट अस डिस्कस। सपोज you have a coil of number of turns and a galvanometer is there. Galvanometer, what is a galvanometer? Galvanometer is a device which can detect the presence of current. It means whether the current is present in a circuit or not, galvanometer will tell us. If galvanometer is showing zero deflection, it means there is no current. Galvanometer is showing some deflection, it means there is some current in magnetic in circuit. Okay, we have a magnet, bar magnet, north south at rest. अभी तक ये बार मैग्नेट कहाँ पे है? एट रेस्ट नियर टू द कॉइल। दिस इज द कॉइल C। उसके पास एक बार मैग्नेट आपने रेस्ट पे रखी है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इसको फील हो रहा है, मतलब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसमें से क्रॉस कर रही हैं। जितनी क्रॉस कर रही हैं वो कांस्टेंट क्रॉस कर रही हैं, अभी तक वो चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स कॉइल को मैग्नेटिज्म फील हो रहा है मैग्नेट का, बट कांस्टेंट फील हो रहा है। दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस इज नॉट changing. Galvanometer is giving deflection 0. It means there is no current in the circuit. But when we move the north pole of the magnet towards the coil, when we start moving the north pole of the magnet towards the coil, what will happen? Galvanometer start giving deflection. Galvanometer start giving deflection because magnetism या मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। जब मैग्नेट मोशन में है तो मैग्नेट जो कॉइल को मैग्नेटिज्म फील हो रहा है दैट इज चेंजिंग।
वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज। जब तक मैग्नेट मोशन में है लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो गैल्वेमेट्री इज गिवन डिफ्लेक्शन। जब मैग्नेट आपने पास लाके थोड़ा यहाँ पे लाके इसको रोक दिया, अगेन रोक दिया, तो फिर से गैल्वेमेट्रिक डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग राइट नाउ। मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज नहीं हो रहा। अब जब हम मैग्नेट को धीरे धीरे बाहर लेके आते हैं, मूव करने हैं, गैल्वेमेट्री इज अगेन गिवन डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। गैल्वेमेट्री इज अगेन गिवन डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। गैल्वेमेट्रिक डिफ्लेक्शन देने का मतलब करंट बन रहा है बट अपोजिट टू द इनिशियल केस। जब मैग्नेट पास लेके आ रहे हो तो करंट राइट साइड में बन रहा था, मतलब डिफ्लेक्शन राइट में थी। अब जब दूर लेके जा रहे हो करंट लेफ्ट में, डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। जब हम दूर ले जाके वापस रोक देंगे फिर से गिविंग डिफ्लेक्शन जीरो। इट मीन्स कि करंट कॉइल में बनने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का साथ में क्या होना जरूरी है, चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तो इंड्यूस करंट, मतलब जो करंट कॉइल में बनेगा, अगर गैल्वेमीटर मान लो पास ला रहे हो तो गैल्वेमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्शन रेट मींस ये करंट बन रहा है, और जब दूर ले जा रहे हो तो इधर है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ओके, सो इट मीन्स करंट इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, सॉरी, करंट इज प्रोड्यूसिंग इन दैट कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का चेंज होना जरूरी है, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिज्म का चेंज होना जरूरी है। ओके, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा। सो व्हाट वाज द डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो उससे जो इसमें करंट बनेगा दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट प्रोड्यूस्ड in coil by changing magnetic field is called induced current. Is called induced current. Induced current उसको कहते हैं कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बनता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। सो there will be current induced in the coil when the magnet is in motion. Magnet is at rest, no current will be induced in the coil, so that current is called induced current only by changing magnet. अगर हम मैग्नेट को रेस्ट पे रख दें और कॉइल को मूव करवाएं, करंट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, करंट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, कूलर सामने चल रहा है, अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ तो मुझे हवा कांस्टेंट फील हो रही है, तो मतलब मैग्नेटिज्म कांस्टेंट फील हो रहा है। अगर मैं एक स्टेप कूलर की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिज्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिज्म अगर चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट बनना चाहिए बॉडी में। नेक्स्ट, अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, कूलर मेरी तरफ आ रहा है, तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा, मैग्नेट मेरे को हवा जो फील चेंजिंग फील होगी। इट मीन चाहे मैग्नेट मूव करे चाहे कॉइल टूवर्ड्स मूव करे, इट मीन्स देयर विल बी इंड्यूस करंट इन दी कॉइल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी वांट टू इंक्रीज द मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। सो व्हाट वी कैन डू, increase the number of turns, you can take stronger magnet, or you can do the speed of moving the magnet faster। मतलब जितनी स्पीड बन रही है, जितनी स्पीड से आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो उसके आगे और पीछे, उतनी फास्ट स्पीड से अगर मूव करवाओ तो इट मीन्स क्या होगा, करंट इंड्यूस ज़्यादा बनेगा, इंड्यूस करंट विल बी मोर देन द बिफोर। ओके, तो अगर हम करंट इंक्रीज करना चाहते हैं, सो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ले लो, स्पीड बढ़ा दो मैग्नेट की, रोटेशन की। सो दिस विल बी द प्रोसेस दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। What is it called? Electromagnetic induction. Now how can we calculate the induced current in a wire which is moving in magnetic field? So now what we are doing, direction of induced current, direction of induced current, induced current की direction हमने calculate अगर करनी हो। Now this is north pole, this is south pole, this is the wire। वायर के साथ में सिर्फ क्या लगा हुआ है, बाहर में लगा रहा हूँ, यहाँ गैल्वेमीटर लगा हुआ है, कोई बैटरी नहीं है, इसमें करंट नहीं चल रहा, करंट अपने बनाना है। ओके, वायर इज ए बी, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ। मान लीजिए रूम की दो दीवारें हैं, जैसे ये एक नॉर्थ हो गया और एक क्या हो गया, साउथ। इसके बीच में कोई ये ऐसे पड़ा हमारे पास वायर, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इधर मूव करवाया मैंने इधर, तो इसकी जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट इसमें कैसे बनेगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इंड्यूस करंट बनेगा. हाउ कैन वी कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स right hand rule. So what is Fleming's right hand rule? As Fleming left hand rule was there, this is the Fleming right hand rule. Thumb, forefinger, central finger. Thumb will give the direction of motion of conductor कि वायर किस साइड मूव कर रही है. Forefinger will give us the direction of magnetic field. Center finger will give the direction of induced current. So in this case what we know, this is the magnetic field, north to south. Thumb moving, okay, as वायर इज मूविंग आउटवर्ड, हम इसको बाहर लेके आ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी से, तो ये आउटवर्ड आ रहा है, सेंटर फिंगर अपवर्ड है. इसका मतलब जब ये वायर आउटवर्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब आउटर की तरफ मूव करेगी, है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लेकिन आउटवर्ड की तरफ मूव करेगी, बाहर की तरफ. सो करंट विल बी इंड्यूस्ड अपवर्ड. सो करंट विल बी इंड्यूस्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है इधर, तो थंब अपवर्ड. अगर ये वायर अंदर जा रही होती तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब इनवर्ड होता, मोशन सेंटर फिंगर डाउनवर्ड है, इसका मतलब करंट क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता. तो यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, दैट इज forefinger will give us the direction of magnetic field. Okay. Next, central finger will give the direction of induced current. It will give the direction of induced current. So thumb motion of conductor, forefinger magnetic field, जो central finger होगी वो induced current direction बताएगी, वायर में induced current किस direction में चल रहा है. So this was the concept of electromagnetic action and this was the last concept. जो इसके further concept हैं that has been deleted by the CBSE for the section 2021, so we need not to be discussed that topics. This was the last topic of the chapter magnetic effect of electric current. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.